Now, in the previous lecture, I told the hit and trial method to balance the chemical equation. There is another method that is by the help of maths. जो स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा है तो आप इसको बहुत जल्दी बैलेंस कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल की भी जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल आपने लिया लेड नाइट्रेट reacts with potassium iodide to give lead iodide and potassium nitrate. So we will balance this by mathematical formulation. Lead nitrate, we know the symbol of lead nitrate is PbNO3 all twice plus potassium iodide, symbol is Ki. Now lead iodide, symbol of lead iodide will become PbI2 and potassium nitrate KNO. अब इस मेथड में आप कोफिशिएंट मानिए. सपोज दिस कोफिशिएंट इज P, दिस कोफिशिएंट इज R, Q, दिस इज R, दिस इज S. नाउ Pb का कोफिशिएंट क्या है? P. प्रोडक्ट में Pb का कोफिशिएंट क्या है? R. यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना है? 2. कोफिशिएंट कितना है? P. यहाँ नाइट्रोजन आ जाइए आप, कितना है? 1, तो 1s. नेक्स्ट ऑक्सीजन पे आइए आप, 3 to the 6, 6p. यहाँ पर ऑक्सीजन पे आइए आप, 3s. यहाँ पोटेशियम पे आइए आप, Q is equal to S. एंड देन आयोडीन पे आएंगे आप, इट विल बिकम Q is equal to 2R. अब आप इसी को भी इसमें से 1 मान लीजिए, P Q इसको मान लीजिए. सपोज मैंने लेट किया P is equal to 1, नेचुरली R will become 1. इससे वैल्यू निकाल लेंगे 2, P की जगह मैंने 1 रखा, S, then S will become 2. Then I will calculate the value of P R S Q. S is equal to 2, hence Q will also become 2. Now put this answer here. P is equal to 1, so we will not write 1. Then Q is equal to 2. Remove Q and put 2. Then R is equal to 1. R is equal to 1, so we will not write 1. S is equal to 2. S is equal to 2. Now this is balanced. This is the mathematical method. Now second equation is butane reacts with oxygen to get carbon dioxide and water. You have to balance this equation. Butane, we know the formula of butane is C4H10 plus oxygen O2. It will give carbon dioxide and water. Again, let the coefficient of this P, coefficient of this Q, R, then S. Write carbon के एटम्स हैं 4, कोफिशिएंट P 4p. इधर आइए आप, R. देन कम टू हाइड्रोजन 10 है, 10p. हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2s. नाउ कम्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? 2q इज इक्वल टू, यहां पर ऑप्शन आइए 2r plus S. Now put here P is equal to 1. You will get 4 into P is equal to 1 रखा आपने, 4 into 1 is equal to R, hence R will become 4. Now यहाँ से आप S निकाल लेंगे. 10 into P is 1,
is equal to 2s. Now s is equal to 10 by 2, s is equal to 5. यहां से आप क्या निकालेंगे? q. Put here 2q is equal to 2r. r is your 4 plus s is your 5. 2q is equal to 8 plus 5. 2q is equal to 13, which implies that q is equal to 13 by 2. Now write again equation. C4H10 plus oxygen, then it gives CO2 plus H2O, P, Q, R, S. What was the value of P? 1. What is the value of Q? 13 by 2. 13 by 2. What is the value of R? 4. What is the value of S? 5. Now we are seeing it is fraction. अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को तो मेरा जो डिनोमिनेटर है 13 by 2, 13 by 2 का डिनोमिनेटर है 2. It will be removed. For example, multiply this whole equation by 2. It will become 2 C4 H10, 2 cancel out, 13 O2, 4 to the 8 plus 5 to the 10. This is your balancing. खाली इसमें आप ऑप्शन चेक कर लो. 13 to the 26, 8 to the 16 and 10 and 8 to the 16 and 10 26. It means this equation is balanced. Now students, एक इक्वेशन और बैलेंस करते हैं. फिर से 2 करेंगे और पहले 1 करते हैं. सो बाय द कोफिशिएंट मेथड जो मैंने आपको सिखाया है. फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव नाइट्रोजन गैस और एक सॉल्ट बना आपका NH4Cl. मैंने आपको बताया था कि इनके आगे कोफिशिएंट लिखो, आप रिएक्टेंट के आगे भी लिखो, प्रोडक्ट के आगे भी लिखो. ठीक है. सपोज आपने यहाँ लिखा P, Q, R, S. अब नाइट्रोजन रिएक्टेंट में P, यहाँ पर नाइट्रोजन ढूंढिए आप, 2R, यहाँ भी नाइट्रोजन ढूंढिए आप, प्लस S. देन हाइड्रोजन पे आइए आप, 3P, इधर हाइड्रोजन पे आइए आप, प्लस 4S. अब क्लोरीन रह गया आपका 2Q, ये 2 रखा हुआ है Q, प्लस यहां पर क्या आएगा S. अब आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए. 2Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका S, इसके S के बराबर. यहां पर हाइड्रोजन है 3P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4S. एंड P इज इक्वल टू आपका हो गया 2 नाइट्रोजन P एंड 2R, ये हो गया आपका S. ना कुछ भी वैल्यू रख लीजिए आप. सपोज मैंने रखा S इज इक्वल टू 1, 2Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 by 2. ये आ गया. अब आप यहां से वैल्यू निकालिए, P की वैल्यू निकालिए. 3P इज इक्वल टू 4S. 3P आपने निकालना है इज इक्वल टू 4S. 4 इंटू 1, 3P इज इक्वल टू 4 और P बन गया आपका 4 by 3. अब देखिए P आ गया आपका 4 by 3. 2R आपको निकालना है, प्लस S आपने कितना निकाला था 1. S कितना निकाला था आपने 1. अब 1 को इधर लेके आइए, 4 by 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2R. टेक एलसीएम 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2R. क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 1 by 3 इज इक्वल टू 2R
6R इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 1/6। ये सारा मैथमेटिकल पोर्शन हो गया। अब आप उठाइए यहां से NH3 प्लस Cl2 N2 प्लस NH4Cl। अब ये सारे कोएफिशिएंट की आप वैल्यू रख दीजिए। यहाँ P था, P आपने कितना निकाला, P 4/3। यहां पर Q है, Q आपने कितना निकाला 1/2। यहां पर आपका क्या R है, R आपने निकाला 1/6। यहां पर आपका S है, S आपने कितना निकाला 1, यहां लिखने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए 3, 2, 6 ये फ्रैक्शन में है, इसको आप होल नंबर बनाएंगे तो एक ही तरीका एलसीएम से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 8 NH3 प्लस हाफ से काटा हमने 3, 3 Cl2, 6 से काटा हमारा हो गया N2 प्लस 6 NH4Cl। अब आप चेक कर लीजिए, यहां पर नाइट्रोजन कितना हो गया 8, यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 24, यहां पर Cl कितना हो गया 3 2 जा 6, यहां नाइट्रोजन कितना हो गया आपका 2 और 6 8, यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 6 4 जा 24 और यहां पर Cl कितना हो गया 6। 8 इज इक्वल टू 8, 24 इज इक्वल टू 24, 6 इज इक्वल टू 6। और भी अगर आपको चेक करना टोटल नंबर ऑफ एटम्स 38, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 38। स्टूडेंट हमने पिछली वाली इक्वेशन बैलेंस करी जिसमें हमने क्लोरीन को लिया लिमिटेड क्वांटिटी में। इस बार हम क्लोरीन को लेंगे थोड़ा सा एक्सेस में। एक्सेस में कंपाउंड चेंज हो जाता है, वहां पर अमोनियम क्लोराइड आया था, यहां पर नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड आएगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया प्लस क्लोरीन मैंने लिया एक्सेस में, Cl2 इन एक्सेस। पिछली इक्वेशन में मैंने क्लोरीन लिया था लिमिटेड अमाउंट में, यहां पर NCl3 बना प्लस HCl बनेगा। अब वही सेम मेथड कोएफिशिएंट P Q R S। नाइट्रोजन P रिएक्टेंट में क्या है कोएफिशिएंट P, यहां पर आ जाइए क्या है R। अगेन हाइड्रोजन पे आइए आप 3P, यहां पर हाइड्रोजन पे आइए आप S, यहां पर आप Cl पे आइए, ये क्या है 2Q इज इक्वल टू यहां पर हो गया 3R प्लस S। Cl के आगे S भी है। नाउ P को 1 मान लूं अगर मैं, तो R विल ऑटोमेटिकली विल बिकम 1। P मैंने 1 माना, 1 पुट करा यहाँ, P इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू S, S हो गया आपका 3। नाउ मुझे Q निकालना है, 2Q इज इक्वल टू 3, R आपका 1 है, R इज 1 प्लस S 3, 2Q इज इक्वल टू 3 बन जा 3 प्लस 3, 2Q इज इक्वल टू 6, Q इज इक्वल टू 6/2, Q आ गया आपका 3। अब यहां पर आप पुट कर दीजिए P1, P की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। Q की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, यहां पर मैंने लिख दिया 3। R की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, नो नीड। उसके बाद आया ना S, S की वैल्यू भी मेरी कितनी आई है 3। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी, देख लो चेक करके। NH3 प्लस 3Cl2, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 प्लस 3HCl। 1 सेकंड लगेगा आपको इसको क्रॉस चेक करने में। नाइट्रोजन एयर 1, हाइड्रोजन एयर 3, Cl एयर 3 2 जा 6, नाइट्रोजन एयर 1, हाइड्रोजन एयर 3 3,
and Cl will become 3 plus 3 6. Total कर लो 6 3 का 9 और 10. 6 3 9 and 10. Hence this equation is balanced. This is the method. ये कोफिशिएंट का मेथड है. इसको आप बना के रखिए. क्रॉस चेक करने में आता है. और आगे और आपको और वीडियो देखनी है, वो करना है, पढ़ना है आगे, तो अब आप आगे जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं. आपकी इच्छा है. थैंक यू.